Hello guys, how are you all? कैसे हैं सब लोग? This is me, your Vedantu master teacher. I welcome you all in this session, right? Under Bridge course, Functions and Graphs. I hope you have gone through session number 1. In that, I have covered, graph of constant function, right? Constant function and which function, guys? Linear function, right? Linear function. When do we call a function linear? When do we call a function linear? We call a function linear whenever the polynomial is having degree 1, right? Degree 1, है ना? In the last class we have seen an equation in two variable, linear equation in two variables, right? इसको हम if we rearrange, what we get? We get something of this form, something like this form, isn't it? यही form मिलता है ना? Which is again a linear form of like this, right? तो इसका ग्राफ तो हम जानते हैं, क्लास 10th के अंदर हम पॉइंट्स प्लॉट कर करके आए थे एंड वी नो कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, राइट? सिंस दिस a and b was constant, तो we can say this m that will come right over here, right in front of x, that will also be a constant, right? And this minus c by b, this is again a constant, right? This is again a constant, है ना? This is again a constant because since c and b are constant, right? So let's call it another constant, right? Let's call it another constant. If some guys are getting confused why this c is written over here, I would say let's call it b, no problem in that. But what is the most important thing that we have to remember here is that these m and b are some constants. This x is the input that I'm giving to the function, and this y is something which I'm getting as an output, right? So this x is an independent variable and this y is an dependent variable, right? It is depending upon x. So this graph we have seen, whatever the graph of this particular function will come, it will be a straight line, right? So I have told you this will depend upon two things, this m and this b right over here. This b right over here, that is the term independent of x, right? This b is independent of x, है ना? अच्छा, तो दो चीजें, स्लोप, दिस m is what? स्लोप बताया था, है ना? और ये b क्या है? इंटरसेप्ट देखेंगे इनको डिटेल में, सो दैट व्हेनेवर वी सी अ लीनियर ग्राफ हम उसका ग्राफ डायरेक्टली बना देंगे, राइट? तो जो भी चीजें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? सो नंबर वन थिंग इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट? ये पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन अनदर वे सो दैट वी कैन ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स इजीली, राइट? सो दिस इज, लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, so that we can make our Cartesian coordinate system, right? This is y axis. y axis पे हमेशा क्या जीरो होगा? y axis पे हमेशा x का वैल्यू जीरो होगा, राइट? तो कोई भी मैं पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ 0,1, तो इट विल लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y axis, राइट? इफ आई वांट टू प्लॉट 0, let's say -5, right? So it will be plotted on the negative y axis, right? Clear? अच्छा, on x axis we have y का वैल्यू 0, isn't it? We have y का वैल्यू 0, है ना? तो similarly we can say like this, right? If we are having a straight line in xy plane, let's say, right, like this, all right? So what angle this line is making with the positive direction of x axis? कितना बना रहा है? Which angle? कौन सा वाला एंगल मेजर करेंगे? ये वाला एंगल मेजर करेंगे, है ना? हमेशा एंगल इधर से ही मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, राइट? है ना? अच्छा, कोई दो लाइंस अगर पैरेलल है, पैरेलल का मीन्स क्या है? उनकी डायरेक्शन सेम होगी, राइट? कोई दो लाइंस अगर पैरेलल है, दैट मीन्स उनकी डायरेक्शन सेम होगी, है ना? एक जैसे, मतलब शिफ्ट होनी चाहिए बस, है ना? दैट्स इट. सो दीज रेड वन एंड ब्लू वन, दीज लाइंस आर पैरेलल, राइट? अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा, जो इसके लिए हमने निकाला था, और ये वाला जो एंगल होगा, वो दोनों इक्वल होंगे? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यानी पैरेलल का मतलब क्या समझा? डायरेक्शन सेम होगी. डायरेक्शन वंस सेम हो गई, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, isn't it? है ना? अच्छा, चलो, तो एंगल हम कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और उसी एंगल को हम बोलेंगे थीटा, एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन। तो ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो भी लाइन एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, राइट? क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव इनटू अनदर कॉन्सेप्ट, है ना? अच्छा, यहाँ पे एक्स एक्सिस बना देते हैं सबसे पहले, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया, क्योंकि एंगल जब भी हम मेजर कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए ही मेजर कर रहे हैं, राइट? है ना? तो ये एक्स एक्सिस हो गया। लेट्स से मेरी कोई लाइन ऐसी है ना? अगर मेरी कोई लाइन ऐसी है, ठीक है? अच्छा, एक और लाइन बना लेते हैं सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट डिफरेंट लाइन्स, राइट? ये दूसरी लाइन होगी। अच्छा, एक और लाइन बना लेते हैं जो कि ऐसे ले लेते हैं, राइट? एक और लाइन बना लेते हैं जिसको कि ऐसा ले लेते हैं, right? If I'm assuming all of these are lines, then these lines will be never ending, right? Lines never end, है ना? लाइन सेगमेंट एंड हो जाता है बट लाइंस नेवर एंड। और रे क्या होती है? रे वो होती है जो कभी भी एंड नहीं होती, है ना? कभी भी एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे वाले पॉइंट पे कभी भी एंड नहीं होगी, है ना? कंटिन्यूसली गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सिमिलरली लाइन नेवर एंडिंग बोथ साइड्स, राइट? अच्छा, अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करूं तो किसी भी एंगल, किसी भी लाइन के लिए हमेशा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर करूंगा, है ना? तो अगर मैंने इसको 1 लाइन बोल दिया, इसको 2 लाइन बोल दिया, इसको 3 लाइन एंड इसको 4th लाइन, राइट? तो पहली वाली लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, राइट? दूसरी वाली लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, इजंट इट? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, है ना? तीसरी वाली लाइन के लिए क्या होगा? दिस वन हमेशा इसी लाइन के साथ एंगल मेजर करेंगे, है ना? अच्छा, चौथी वाली लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो तो दिस वन, राइट ओवर हियर, इजंट इट? अच्छा, सबसे छोटा एंगल किसका नजर आ रहा है? सबसे छोटा, लेट्स कॉल इट θ1, जो 1 लाइन के साथ बन रहा है। जो सेकंड लाइन के साथ बन रहा है उसको θ2 बोल देते हैं। जो थर्ड के साथ बन रहा है वो θ3, और जो फोर्थ के साथ बन रहा है वो θ4, राइट? तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, है ना, सबसे छोटा एंगल सबसे पहले लिखना चाहता हूं कि कौन सा है, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? θ1, इजंट इट? θ1 सबसे छोटा है, राइट? क्योंकि अगर मेरी लाइन लेट से सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल तो 0 डिग्री एंगल बना रही होगी वो एक्स एक्सिस के साथ, है ना? धीरे धीरे अगर वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हम कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, है ना? अच्छा, एक समय आएगा जब y एक्सिस के पैरेलल वो लाइन हो जाएगी, है ना? और y एक्सिस में और x एक्सिस में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री, राइट? तो वो जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगी एट दैट इंस्टेंट? 90 डिग्री, राइट? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीजिंग, राइट? अच्छा, और अगर मैंने उसको टिल्ट किया, राइट, द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? कब तक इंक्रीज करेगा? 180 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, राइट? कैसे? क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री तक वो लाइन ऐसे घूमी तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट और नॉट, है ना? तो किसी भी लाइन के लिए अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करूं, सबसे पहली बात तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर होगा। नंबर 2, वो एंगल 0 से लेकर के 180 डिग्री तक जाएगा, राइट, है ना? और काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, राइट? दीज थिंग्स आर क्लियर। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस देखूं तो θ1 सबसे छोटा होगा, isn't it? θ2 उससे बड़ा होगा, है ना? फिर θ3 उससे बड़ा होगा एंड θ4 विल बी दी मैक्सिमम 1, राइट? क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसको मैं 0 डिग्री बोलूं या 180 डिग्री बोलूं? उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलूं, 0 डिग्री या 180 डिग्री? तो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री बोल देते हैं। किसी भी एक वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे, या तो 0 को कर लें या 180 डिग्री को कर लें, एक ही बात है ना? क्योंकि बोथ ऑफ दीज लाइंस विल बी सेम इन दैट केस, राइट? सो 0 डिग्री को इंक्लूड कर लेते हैं, 180 डिग्री को एक्सक्लूड कर लेंगे, राइट? क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम स्लोप की। ये तो हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट? स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप क्या है? जो भी हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया उसका टैन, राइट? तो tan थीटा हमारा क्या हो गया? स्लोप। क्लियर है? tan थीटा क्या हो गया? स्लोप, है ना? अच्छा, ये थीटा कहां से कहां तक जाएगा अभी बताया? ये थीटा जाएगा 0 से लेकर के 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैं पाई लिख सकता हूं, राइट? अच्छा, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या लिख दिया, राइट? जो क्लास 10 से जस्ट पास आउट हो गया है, कभी भी जैसे मुझे कोई कंटिन्यूअस इंटरवल लिखनी है, राइट? मुझे 0 से लेकर के लेट्स से
पाई तक सारे नंबर, इसका मतलब क्या है, जीरो से लेकर के पाई तक जितने भी नंबर है, पाई इज व्हाट 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। अच्छा, अगर इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूं कि 1 से आप जस्ट बड़ा नंबर बता दो, 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर बता दो, तो नहीं बता पाओगे, राइट। किसी भी रियल नंबर से जस्ट बड़ा अगर मैं नंबर पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स, राइट और नॉट। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, राइट, है ना। अच्छा, तो अब मुझे एक पर्टिकुलर सेट यानी थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 180 डिग्री तक मेंशन करना है, राइट। तो 0 डिग्री भी होगा, 0.5 डिग्री भी होगा, 0.005 डिग्री भी होगा, ऐसे कर करके बढ़ रहा होगा, राइट। तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक सारी चीजें, बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर, राइट, बिकॉज दीज आर अगेन वैल्यूज, है ना। इनको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, है ना। 180 डिग्री पाई जो होता है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, राइट। तो 0 से लेकर के 3.14 समथिंग 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 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होंगे, है ना। अच्छा, उन सभी को इंक्लूड करना है मुझे, राइट, उन सभी को मुझे एक साथ लिखना है, तो हर एक नंबर को तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, राइट। इसीलिए मैंने इंटरवल्स ये जो सिंबल बनाए हुए हैं दो, राइट ओवर हियर, ध्यान से देखना गाइस, ये जो सिंबल्स बनाए हुए हैं मैंने, कौन सा, पहले तो ऐसा क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, राइट, और ये इसको मैं रीड करता हूं ओपन ब्रैकेट, राइट। ओपन ब्रैकेट मींस व्हाट, दैट दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। ओपन मींस व्हाट, दिस वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, इससे जस्ट पहले वाली जितनी भी है ऑल आर इंक्लूडेड, राइट, है ना। अच्छा, दिस क्लोज्ड वन मींस दिस इज इंक्लूडेड, क्लियर है कि नहीं है। तो 0 से पाई की बीच में एक्सक्लूडिंग पाई एंड इंक्लूडिंग 0 अगर मुझे सारी वैल्यूज लिखनी है तो मैंने 0 पे क्लोज लगा दिया, राइट, 0 पे क्लोज लगा दिया, कॉमा करके पाई पे ओपन लगा दिया। दैट मीन्स कि इट इज इंक्लूडिंग ऑल द रियल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 0 to पाई, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग पाई, राइट। वाई एक्सक्लूडिंग पाई, बिकॉज देयर इज एन ओपन ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट, है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता 0 से पाई, दैट मीन्स दोनों ही एक्सक्लूड होते, लेकिन इसके बीच में 0 से लेकर के पाई के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए हैं, एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई, राइट। इसका मतलब ये होता, राइट। अच्छा, इसका मतलब तो अभी मैंने देख ही लिया, इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग पाई एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज इंक्लूडेड, राइट। अच्छा, इसका मतलब अगर ऐसा होता तो क्या समझता, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, और उनके बीच में आने वाले इनफाइनाइट रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, राइट। अच्छा, एक और कौन सा कॉम्बिनेशन बाकी रह गया, इसके और इसके 4 कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं, है ना। एक और कौन सा बाकी रह गया, ये वाला बाकी रह गया, 0 इंक्लूडिंग पाई एक्सक्लूडिंग, राइट। अगर ऐसे सिंबल लगाने मुझे, एक पहले लगाना है एक बाद में लगाना है, तो 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे गाइस, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज नॉट इंक्लूडिंग बट पाई इज इंक्लूडिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज इंक्लूडिंग, राइट। सो दैट्स इट, दिस इज इंटरवल्स, दिस इज कंटिन्यूअस इंटरवल्स। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। हम इसको दूसरा सेशन भी करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक यू गाइज आर क्लियर विद दिस। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट दैट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। हाँ, तो ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने देखा कि इट विल गो फ्रॉम 0 to पाई, राइट, इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग पाई, क्लियर था, है ना। अच्छा, मैंने आपको इन ट्रिग्नोमेट्री व्हेन आई वाज टेकिंग द सेशंस, मैंने आपको बताया था कि 0 से पाई यानी कि एंगल जो भी है मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हो रहा है, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट एंड कहां होगा, 180 डिग्री पे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कहां होता है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जब भी देखता हूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट ही चलता है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, राइट, ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल मैंने बताया था, आई होप आपको याद होगा, ASTC, है ना, राइट। सो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमको स्ट्रेट लाइन के लिए जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा थीटा 0 से पाई ही जाएगा, राइट। तो 2 ही क्वाड्रेंट के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर माय tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू गाइज नो और नॉट, आई हैव कवर्ड दिस थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। और आप ये चीज तो आप खैर क्लास 10th में भी करके आए, राइट। मैंने आपको ये सिखाया था कि फॉर हायर एंगल्स हाउ टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आई नो विच थिंग इज पॉजिटिव, साइन, SIN वाला साइन इज पॉजिटिव फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ थीटा आई टेक, राइट, 90 से 180 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। दैट मीन्स कि जब भी मेरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा
जो tan का वैल्यू आएगा मेरा उस थीटा के लिए पर्टिकुलर, दैट विल बी नेगेटिव इफ द एंगल इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, राइट? क्लियर है ना? क्लियर है? अच्छा, तो m मैंने कहां रखा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में? ऐसे रखा था, x के आगे इन फ्रंट ऑफ x, राइट? सो व्हेनेवर दिस m इज नेगेटिव, यू कैन से दैट द एंगल मेड बाय दिस पर्टिकुलर लाइन with the positive direction of x axis will be greater than 90 degree, isn't it? बोल सकते हैं, है ना? अगर पॉजिटिव है तो मैं ये बोल दूंगा कि मेरा एंगल जो बनने वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से कम होगा, राइट? 90 कब होगा? 90 जब होगा जब वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट? और y एक्सिस के अगर पैरेलल वो लाइन है तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, isn't it guys? 3 केस हो सकते हैं लाइन के, या तो जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, या 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, राइट? 3 केसेस हो सकते हैं, है ना? यही 3 केसेस होंगे। क्या क्या बताया मैंने? 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा किसी भी लाइन का एंगल, या तो 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, isn't it? यही 3 केसेस हो सकते हैं। इस केस में जो मेरा m आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, राइट? 90 डिग्री के केस में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? y एक्सिस के, और y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन में जब ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा x तो कांस्टेंट रहेगा ही, राइट? सो x विल बी कांस्टेंट इन 90 डिग्री वाले केस में। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लाइन की इक्वेशन लिखने का कोई ज्यादा लोड ही नहीं है, राइट? इट्स वेरी इजी टू राइट व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? जब भी बात कर रहा हूं 90 डिग्री से 180 डिग्री के लिए तो x का कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव, लेकिन y का कोएफिशिएंट इन दैट केस शुड बी 1। पहले 1 बनाएंगे, राइट? अगर 1 नहीं है तो कैसे बनाएंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में y को एक तरफ लेके आओ, बाकी रेस्ट एक तरफ लेके आओ। सो दिस m राइट ओवर हियर विल बी नेगेटिव, राइट? तो थीटा में समझ जाऊंगा कि डायरेक्टली 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आइडिया लगा है, राइट? तो ध्यान से देखना, एक लाइन ऐसी है, लेट्स कॉल इट लाइन नंबर 1, है ना? एक लाइन ऐसी है, लेट्स कॉल इट लाइन नंबर 2। अब ये मत बोलना कि सर लाइन तो नेवर एंडिंग होती है, आपने बनाई नहीं एरोस। मैं एरोस नहीं बना रहा अभी, है ना, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है? तीसरी बात करते हैं ये तीसरी लाइन ले लेते हैं, राइट? और ये चौथी लाइन ले ली मैंने, है ना? XY प्लेन के अंदर मैंने 4 लाइंस ले ली। थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर आप अच्छे से फोकस करना, मैं एक्सेस को रेड पोर्शन से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, राइट? दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y axis, right? I want to know what is the order of slopes, different लाइन से तो different slopes होंगे, है ना? तो मुझे ये चीज चाहिए कि मैं इनका ऑर्डर लिख दूं। सबसे बड़ा स्लोप कौन सा होगा? सबसे बड़ा स्लोप कौन सा होगा? सबसे बड़ा स्लोप किस लाइन का होगा? मुझे ये तो पता है कि 3 और 4 लाइन को अगर मैं देखूं, राइट? तीसरी लाइन को और चौथी लाइन को, इनका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। इनका एंगल 3 और 4, ये जो 2 लाइनें हैं, इनका जो भी एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और स्लोप मेरा क्या होता है? tan ऑफ दैट एंगल जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, राइट? यानी थीटा का, है ना? यानी इन एंगल्स का, जैसे इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये है, एंड इसका थीटा ये है, एंड सो ऑन, राइट? है ना? तो M3 और M4 दीज वैल्यूज विल बी नेगेटिव। ये तो वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है गाइस? है ना? क्लियर है? ओके। दूसरी बात करते हैं लाइंस नंबर 1 और 2 की, M1 और M2 की। ये पता चल गया ये दोनों पॉजिटिव होंगी। ये पॉजिटिव क्यों होंगे M1 M2? क्योंकि थीटा मेरा 90 डिग्री से कम है। थीटा मेरा 90 डिग्री से कम है, दैट मींस उसकी tan की जब मैं वैल्यू निकालूंगा उस थीटा के लिए, दैट विल बी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, इजंट इट? तो ये तो समझ में आ गया कि M1 और M2 पॉजिटिव होंगे और M3 M4 नेगेटिव होंगे। इतना समझ में आ गया, है ना? अच्छा, M2 बड़ा होगा कि M1? M2 बड़ा होगा कि M1? अगर मैं आपसे पूछूं tan 30 डिग्री कितना होता है, मैं आपसे पूछूं tan 30 डिग्री कितना होता है,
तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1, isn't it? अच्छा, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3 एंड सो ऑन, राइट? ऐसे कर करके चलते रहेंगे। tan 0 डिग्री 0 होगा। तो क्या ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ते जा रहा है 90 के तरफ, मेरे tan का जो वैल्यू आने वाला है, दैट इज इन दिस केस स्लोप्स का जो वैल्यू आने वाला है वो बड़ा होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। गाइज अभी आई एम टॉकिंग अबाउट 0 से 90 डिग्री ओनली, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव है tan थीटा, राइट? तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तो नेगेटिव ही है, दैट मींस वो तो छोटा ही रहेगा इन दैट केस। तो क्लियर है ना? अभी आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ नाउ 0 से 90 डिग्री। जब भी 0 से 90 डिग्री के बीच में आप एंगल डालोगे, राइट, जैसे जैसे आप बड़ा 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 एंगल डालते जा रहे हो tan के अंदर, tan इज ऑल्सो फंक्शन, tan इज ऑल्सो फंक्शन, किसका फंक्शन? थीटा का, क्योंकि थीटा डिफरेंट वैल्यूज डालते जा रहे हैं, राइट? बताया था फंक्शन लास्ट क्लास के अंदर, है ना? सो tan इज ऑल्सो फंक्शन। तो tan का फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे आप 0 से 90 डिग्री की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, उसके अंदर इनपुट इट इज इंक्रीजिंग, राइट? आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। जो आउटपुट क्या है बेसिकली? ये वैल्यूज 1, 1/0, 1/√3, 1√3 एंड सो ऑन, राइट? तो मुझे ये समझ में आ गया कि m1 m2 पॉजिटिव थे तो 2 का एंगल बड़ा था, यानी θ2 बड़ा था θ1 से, और θ2 90 डिग्री से कम है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो मुझे ये समझ में आ गया कि m2 विल बी ग्रेटर देन m1, isn't it? m2 विल बी ग्रेटर देन m1, दैट मींस सबसे बड़ा होगा m2, उससे छोटा होगा m1, क्योंकि m3 और m4 स्लोप्स ऑफ 3rd and 4th लाइंस ऑलरेडी नेगेटिव थे। क्यों नेगेटिव थे? क्योंकि इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज्यादा था, और 90 डिग्री से ज्यादा के लिए 180 डिग्री तक जो टेंजेंट का वैल्यू होता है, यानी tan का जो एंगल डालूंगा अंदर, तो द वैल्यू, आउटपुट वैल्यू जो आएगा मेरे पास वो नेगेटिव होगा, राइट? सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, आगे बात करते हैं m3 और m4 में कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं θ3 देखूं और θ4 देखूं, तो θ3 तीसरी लाइन कहां है? ये रही, है ना? तीसरी लाइन ये वाला एंगल बना रही है, और चौथी लाइन ये एंगल बना रही है θ4। तो ये तो समझ में आता है कि θ4 इज ग्रेटर देन θ3, isn't it? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? θ4 इज ग्रेटर देन θ3, इतना समझ में आता है ना? तो लेट से मैं θ4 को कुछ वैल्यू दे देता हूं 150 डिग्री, और θ3 को मैं लेट से 120 डिग्री वैल्यू दे देता हूं, है ना? क्लियर है? इतना क्लियर है? ये ट्रेंड ऑब्जर्व करने के लिए मैंने वैल्यूज डाली हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, राइट? तो tan θ4 की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है? थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, राइट? tan θ4 का वैल्यू निकालो, tan 150 डिग्री का वैल्यू निकालो गाइस, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिखाया था, राइट? जिसने नहीं देखा है सेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैथमेटिकल टूल्स अंडर फिजिक्स किया हुआ है मैंने एक लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री, राइट? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, वहां जाके देख लेना, राइट? जिनको नहीं आता है, अभी आई एम राइटिंग दी आंसर हाउ टू फाइंड, राइट? 150 डिग्री, राइट? tan 150 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालना है, क्लियर? अच्छा, मैंने क्या बताया? जब भी आप किसी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो, सबसे पहले उसको 90 प्लस माइनस या 180 डिग्री प्लस माइनस की फॉर्म में लेके आओ, राइट? ऐसे ही बताया था, है ना? राइट? अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना? 150 डिग्री क्या होगा? यही तो होगा, दोनों वैल्यू सेम ही तो लिखी हुई है, राइट? आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या स्टेप बताया था? जब भी आपका यहाँ पे एंगल जो लिखा हुआ है, या तो लिखा होगा 90 का मल्टीपल, या लिखा होगा 180 डिग्री का मल्टीपल, तो ये 180 डिग्री का मल्टीपल लिखा है। तो जब भी 180 डिग्री का मल्टीपल लिखा होता है, हम tan को tan में ही रहने देते हैं, राइट? cot को cot में ही रहने देते हैं, एंड सो ऑन, राइट? जब भी यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हो, मल्टीपल ऑफ पाई यानी 180 डिग्री, राइट? तो सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली साइन अलॉट कर देंगे, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो माइनस आ जाएगा, राइट? देन नेक्स्ट स्टेप, मल्टीपल ऑफ पाई है, दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, यानी कि tan ही रहेगा। और दूसरी चीज क्या करने वाले हैं, जो भी एंगल यहां पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, राइट? तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? -1/√3, isn't it? -1/√3 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया।
अच्छा, अब मुझे क्विकली ये बता दो 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और इसको मैंने लिख दिया माइनस tan 60 डिग्री, राइट। इसका वैल्यू आ गया -√3, है ना। तो -√3 बड़ा के -1/√3 बड़ा, -1/√3 बड़ा के -√3 बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा? -1/√3 बड़ा, -1/√3 बड़ा, है ना। तो जब भी एंगल थीटा, जब भी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, राइट, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो जिसका थीटा कम उसका स्लोप बड़ा, कह सकता हूं मैं। जब भी एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, जब भी एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, मैं क्या कह सकता हूं कि जिसका एंगल छोटा उसका स्लोप बड़ा। यही चीज तो आ रही है, स्लोप ही तो है बेसिकली। tan 150 डिग्री, tan 120 डिग्री क्या निकाला मैंने? स्लोप ही तो निकाला। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, तो जिसका एंगल छोटा उसका स्लोप बड़ा। तो एंगल किसका छोटा? 3 और 4 में से 3 का छोटा, दैट मीन्स उसका स्लोप बड़ा, यानी M3 इज ग्रेटर देन M4, इजंट इट। तो इन चारों के बीच में अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? दैट M2 सबसे बड़ा, उससे छोटा M1, राइट। यानी स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट, है ना। उससे छोटा M1 का स्लोप, देन M3 का स्लोप, एंड देन M4 का स्लोप, राइट और नॉट गाइस? सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा, स्लोप का आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्लोप का आइडिया हो गया तो आधा काम आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरसेप्ट, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट भी कौन सा? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, लेट्स से, है ना, लेट्स से मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इसने वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा, राइट। इसने वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काटा, राइट। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो मैं उसको क्या लिखता हूं? 0, समथिंग, 0, लेट्स से मैंने सी लिख दिया। सी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने लीनियर इक्वेशन क्या कंसीडर करी थी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। जब भी मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू सी मिलेगा। दैट मीन्स कि मेरी जो स्ट्रेट लाइन है दैट मस्ट पास फ्रॉम 0, सी, isn't it? 0, सी, है ना। अच्छा, दिस सी इज अ वेरिएबल, अभी हमने इसको कोई वैल्यू अलॉट नहीं किया है, तो हम इसको चाहे तो पॉजिटिव वैल्यू अलॉट कर दें, चाहे नेगेटिव वैल्यू अलॉट कर दें, राइट। ये सी +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। जब ये सी -3 होगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इज इट फाइन? फाइन, दोनों चीजें क्लियर है? क्या बोला मैंने? वाई इंटरसेप्ट क्या बोला मैंने? इज इट क्लियर? है ना। अच्छा, इज इट फाइन? जो भी मैंने पॉइंट मेंशन किया वो क्लियर है ना। दो चीजें क्या क्या बोली? स्लोप का आइडिया क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज किसका आइडिया क्लियर होना चाहिए? इंटरसेप्ट का, है ना। इंटरसेप्ट क्या? वाई एक्सिस को जहां उस पॉइंट, जो उस लाइन ने काटा, वो वाला इंटरसेप्ट, दैट इज 0, सी, क्योंकि वाई एक्सिस पे काटा तो एक्स तो 0 होगा ही। इज इट फाइन? राइट, आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे रफ स्केचेस बता दो कि जैसे एक लाइन ले ली, है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x के आगे y का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 है, ठीक है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये लीनियर भी है इन x, लीनियर इन x। कैसे पता चला? x का मैक्सिमम पावर 1 है, दैट मींस इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। क्लियर है कि नहीं है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इसको किससे कंपेयर करें? mx प्लस c से, जहां पे m क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या? tan थीटा। tan थीटा, थीटा का मतलब क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या? वो एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन बनाने वाली है। इज इट क्लियर? है ना, ठीक है। दूसरी चीज, ये सी क्या? सी मतलब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे? 1, यानी कि ये जो लाइन बनेगी ये 0, 1 पॉइंट से पास होगी। isn't it? isn't it? है ना। क्लियर है कि नहीं है गाइस? क्लियर है कि नहीं है? सो आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ, डायरेक्टली देखना कैसे ड्रॉ कर देता हूं।
ठीक है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना लिखा हुआ है, जो भी लाइन गिवन है मुझे स्लोप कितना दिया हुआ है 1। किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए मेरा स्लोप 1 आता है? tan थीटा का वैल्यू कब 1 होता है गाइस? कब 1 होता है? जब थीटा, पहली चीज तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है? स्लोप पॉजिटिव तो मैं क्या समझा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। थीटा 45 डिग्री यानी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री मुझे बनाना है, राइट है ना। और लाइन को किससे पास करवाना है? 0,1 से। क्यों 0,1 से? क्योंकि जब मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर x का वैल्यू 0 डाला तो मुझे y का वैल्यू 1 मिला, राइट। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस लाइन विल पास थ्रू 0,1 एंड विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। राइट और नॉट गाइस? राइट और नॉट? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट मुझे बता दो, ये वाला, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे गाइस? कैसे बताओगे? यहां पे क्या 0 होगा? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, राइट। तो कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा तो y तो 0 हो गया, और x का वैल्यू कैसे निकाला? इस इक्वेशन में डाल के। तो -1,0 कम्स आउट टू बी मेरा क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ दी, कोऑर्डिनेट जहां ये लाइन x, जहां ये लाइन स्ट्रेट लाइन, या मैं कहूं ग्राफ किसका, y = x+1 का, x एक्सिस को कट करेगा। राइट और नॉट गाइज? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट अंडर द टॉपिक लीनियर ग्राफ्स, राइट। लीनियर एक्सप्रेशंस के ग्राफ्स, राइट। स्ट्रेट लाइन होंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x + 2y = 5, आप मुझे इसका रफ स्केच बना के दिखा दो कि ये कैसा दिखने वाला है। तो पहले आप कैसे करते थे? पॉइंट डालते थे, वैल्यूज निकालते थे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे और पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब क्लास 11th में आ गए, बड़े हो गए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले इस लाइन को किसमें अरेंज करेंगे? y = mx + c फॉर्म में, ठीक है। y = mx + c फॉर्म में कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। 2y = -3x + 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो y का वैल्यू कितना आ गया? -3/2x + 5/2, है ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो y का वैल्यू 5/2 आया, यानी ये जो लाइन बनने वाली थी ये लाइन 0,5/2 से पास होगी, राइट। तो इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे? स्लोप। स्लोप क्या होता है? जो भी x के आगे लिखा हुआ है। ऐसी इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज रिटन टू बी नेगेटिव। नेगेटिव देखते ही स्लोप हम क्या समझ गए? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो ये तो पता चल गया, राइट। तो हमको क्या पता चल गया लाइन के बारे में? कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का पॉइंट 0,5/2, तो मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट, है ना। अच्छा, एक चीज और बोल सकता हूं मैं, एक चीज और बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं? ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाले पॉइंट पे x 0 हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पे y 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 5/3 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स से तो पास करेगी ही, राइट और नॉट। अच्छा, मैंने थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली tan थीटा -3/2 कब होता है, राइट। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, राइट। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये जो भी एंगल होने वाला है ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। कैसे? क्योंकि इसका स्लोप यानी tan थीटा नेगेटिव है। इज इट राइट? इज इट राइट? है ना। अच्छा, मैं रफली भी बता सकता हूं कि ये किस लाइन के इधर होगी। जैसे, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन है जो 145 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, और एक लाइन, एक ये वाली लाइन है, राइट। आप मुझे बता दो कि ये लाइन कैसे बनेगी इसके रेफरेंस में, ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? आई मीन
ऊपर से पास होगी या नीचे से पास होगी, बता सकता हूं मैं, ये बता सकता हूं मैं। कैसे? क्योंकि मुझे पता है tan 145 डिग्री कितना होगा, tan 145 डिग्री कितना होगा, -1। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है, कैसे करेंगे, tan 180 डिग्री -45, 180 डिग्री का मल्टीपल लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पहले तो माइनस साइन, राइट, tan में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री लिखा हुआ है या उसका मल्टीपल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये -tan 45 डिग्री हो गया, दैट मीन्स -1 हो गया, राइट। और अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर देख के आया हूं, क्या देख के आया हूं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जब भी मैं बात करूं, ठीक है, जब भी बात करूं तो जिसका थीटा कम उसका स्लोप ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका स्लोप ज्यादा, जिसका थीटा कम तो स्लोप ज्यादा, ये चीज देख के आया है ना। अच्छा, -1 बड़ा है, स्लोप्स की बात कर रहा हूं, -1 बड़ा है कि -3/2 बड़ा है, कौन सी चीज बड़ी है, -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो इसका स्लोप छोटा हो जाए, इसका एंगल जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। सही बात है। अगर ये एंगल छोटा हो गया, ध्यान से देखना गाइस, फिर से रीड्रॉ कर देता हूं इसको, रीड्रॉ कर देता हूं। क्या स्टेटमेंट है मेरे पास कि एक लाइन जो है वो 145 डिग्री एंगल बना रही है, इसको थोड़ा रेड मार्क कर देते, राइट। सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये राइट ओवर हियर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एंगल लेट्स से मैं बोल देता हूं 145 डिग्री है, राइट। इसके स्लोप का वैल्यू कितना आया, -1, राइट। अब मुझे ऐसी लाइन प्लॉट करनी है इसके रेफरेंस में जिसका स्लोप -3/2 आ रहा है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, जिसका थीटा कम उसका स्लोप ज्यादा, लेकिन कब कब, सिर्फ थीटा ग्रेटर देन 90 और 180 डिग्री के बीच में, राइट, है ना। तो स्लोप किसका ज्यादा, इसका, तो इसका एंगल कम होगा, राइट। -1 बड़ा कि -3/2 बड़ा, -1 बड़ा, तो इसका एंगल कम होगा, राइट। तो -3/2 वाली जो लाइन मैं बनाने वाला हूं स्लोप वाली, वो लाइन का एंगल ज्यादा होना चाहिए, और एंगल कौन सा होगा, एंगल कौन सा वाला, ये वाला ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये लाइन इसके नीचे लाई करेगी, राइट। तो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो -3/2 पे वो थीटा कितना लेगा ये तो हम नहीं बता पाए, लेकिन ये जरूर बता पाए कि -1 जब स्लोप होगा तो उससे तो लाइन नीचे ही जाएगी, राइट। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस थिंग्स, है ना। और भी ग्राफ्स बनाने का ट्राई करो, राइट, एंड लुक कि आप सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग ऑन योर ग्राफ्स, यू विल बी रियली कंफर्टेबल, एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द ग्राफ्स, यू कैन दे विल हेल्प you definitely in solving the problems, right, both in physics and in mathematics, right. I hope the concepts that I have delivered today you guys got it completely. अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो do let me know in the comment section, we will work on to that, right. Thank you so much guys.